वो क्या है? हाँ, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। तो कल बायोमोलिक्यूलर था, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हो जाते थे? दो, बोथ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज कौन सा? मिथाइल ब्रोमाइड। तो अब इसमें क्या है? इसमें एक ही होगा, इसमें एक ही होगा। सबसे पहले अगर हम इसकी एग्जांपल ले लेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एग्जांपल है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हाँ, बता फॉर्मूला क्या होगी? CH3, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। व्हाई टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड? क्योंकि SN2 में टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या करता है? वो लीस्ट रिएक्टिव है। सो दैट इज व्हाई कि SN1 में कौन होगा? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नो डाउट दिस इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस NaOH। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है, हाँ प्रोडक्ट वही है, अल्कोहल्स इन बोथ द केसेस, बट मैकेनिज्म इज डिफरेंट। हाँ, इसमें क्या प्रोडक्ट होगा? CH3 क्या होगा? OH कहां पर आता है? Br। समझा? CH3 नेक्स्ट CH3 और यहां पर क्या होगा? OH प्लस NaBr। दिस इज सिंपली अ टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। अब हम इसका जो मैकेनिज्म है वो अगर हम देखेंगे, मैकेनिज्म, हाँ मैकेनिज्म, द स्टेप वाइज क्या है डेफिनेशन मैकेनिज्म की? द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ क्या? रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, दैट इज नोन एज मैकेनिज्म, दैट इज नोन एज मैकेनिज्म। तो पहला स्टेप इसका है, द फर्स्ट स्टेप इन दिस रिएक्शन, वो कौन सा है? दैट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स, दैट इज CH3 Br undergoes heterolytic fission. Heterolytic fission means heterolytic fission. What actually happens in this fission? Heterolytic fission. What actually happens in this fission? There is an unequal distribution of these two electrons. These two electrons are completely taken by Br. These are taken by Br. So because of the heterolytic fission, we'll get a charged species, that is carbocation. That is carbocation. ये वाला positively charged carbon having 6 valence electrons. 6 valence electrons. जरा काउंट करो, है 6 की ज्यादा कि कम है इसके पास? कार्बन के पास, सेंट्रल कार्बन के पास 2 यहां पर है, 2 यहां और 2 यहां, 6 टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज वो क्या हो गया? पहले अगर हम इसमें देखेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की देखेंगे, वो क्या है? दैट इज sp3। अब ये चेंज हो रहा है, कहां से कहां? अब इसकी क्या है? sp2 और यहां वापस क्या निकल रहा है? Br नेगेटिव। So this is called carbocation. This is called carbocation, but this is tertiary. Because it is having 3 carbons attached to the positively charged carbon. तो इसीलिए ये क्या है? Tertiary. This is the first step of the reaction. अब जो next step इसका है, second step. But the first step is the slowest step of this reaction. Slowest step. The slowest step always determines the rate of a reaction. Now the second step is the charged carbocation, that is this one. It reacts with OH nucleophile. Since carbocation is in a planar having sp2 hybridization and 6 valence electrons. 6 valence electrons, and it is highly reactive. Now there is a possibility of attack.
See, if it attacks from the front, is there any steric effect or hindrance? No. Last time there was in case of what? SN2 mechanism. So in this case, both the attacks, that is front as well as back, front as well as back attack is possible. Because of the front as well as the back, there will be, हाँ कॉन्फ़िगरेशन को क्या होगा, जरा बता कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज होगी. अगर if it follows the route number first, say this is first, that is attack occurs by front side. What will happen to the configuration? हाँ configuration को क्या हो गया, क्या हो जाएगा, CH3 कहां पर होगा, OH उसी पोजीशन पर जहां पर कौन था, Br. If it attacks by front side, so we will have OH here. That means the configuration is retained. The configuration is, so it is called retention in configuration. Retention in configuration. समझ आ रहा है? This is first route. No doubt there is a possibility of the second route. That is, it can also attack from the back side. The product formed is having inverted configuration. Inverted configuration or inversion in configuration. Inversion in configuration. Configuration. हाँ अब क्या हो रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, रिटेंशन भी हो सकता है, इन्वर्शन भी हो सकता है. So there is a chances of both retention as well as inversion. This could be 50-50 sometimes as well. This could be 50-50 sometimes as well. So those reactions in which both retention and inversion occurs, that is known as, the process is known as racemization. Racemization. That means that both retention as well as inversion occurs in the same reaction. That is known as racemization. अब हम इसका रेट ला देखिए. हाँ रेट ला पता, रेट ला अगर हम इसके लिए देखिए क्या होगा, इसके लिए रेट ला, रेट ऑफ दिस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. I will write in short, rate of alkaline hydrolysis of tertiary butyl hydroxide. अब बताओ रेट किसके बराबर होगी, रेट इज प्रोपोर्शनल टू, अब ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर नहीं है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप में, एक ही, कौन सा, ये वाला, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. OH, that is the nucleophile is not involved in this setup. समझ आ रहा है? So that is why एक ही पर ये डिपेंड कर रहा है, किस पर, मैं क्या लिखूंगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू, मैं क्या लिखूंगा बताओ, दिस टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड को. न्यूक्लियोफाइल नहीं मैं लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि वो फास्ट स्टेप है. दिस स्टेप इज वेरी फास्ट, दिस इज वेरी फास्ट. एक्चुअली द रेट इज डिटरमाइंड बाय द सिलेबस स्टेप. ये ऐसी बात है कि अगर आप पिकनिक पर जाओगे, आपके साथ एक छोटा बच्चा होगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो टू कैंटीन या इन अ होटल, तो आप तेज चलोगे, लेकिन आपका तेज चलना काम नहीं आएगा, काम आएगा किसका, आपके बच्चे जो आपके साथ होगा, आपको उसी स्पीड के साथ चलना पड़ेगा. समझ आया? दैट इज वाई द रेट इज डिटरमाइंड बाय द स्लोवेस्ट स्टेप, नॉट द फास्ट स्टेप. नाउ हाँ अब बता रेट ला क्या होगा, ये वाला होगा रेट. सो नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन टू द रेट इफ वी विल डबल दिस, rate of reaction will double. Now if we will double this concentration of nucleophile, what will happen to the rate? Is rate dependent on nucleophile? No, rate is independent on the OH or nucleophile, so rate will not change if we will double what, OH. समझ आ रहा है? That means it is completely dependent only on what, this tertiary butyl bromide. टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. हाँ बता, अगर हम इसकी जो कंसंट्रेशन है,
will reduce to half. What will happen to the rate of reaction? That will also become half. That will also become half. Now, next point is effect of solvents. Effect of solvents. in this reaction you will have on a charges. This मैंने already बता दिया. कार्बोकैटायंस बढ़ रहे हैं. कार्बोकैटायंस बढ़ रहे हैं. अगर हम इस रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट्स लगा देंगे तो कौन से सॉल्वेंट्स बेस्ट होंगे इसके लिए? पोलर होंगे कि नॉन पोलर? इसमें चार्जेस स्पीशीज बढ़ रहा है कि नहीं? सो कौन से सॉल्वेंट्स हम यूज कर सकते हैं? सॉल्वेंट्स कौन होंगे? फिर पोलर लाइक डिसॉल्वर्स. तो लाइक, तो इसका मतलब है कि इसमें कौन सा सॉल्वेंट्स यूज कर सकते हैं? पोलर सॉल्वेंट. सो वी विल यूज पोलर सॉल्वेंट्स. वी विल यूज पोलर सॉल्वेंट्स. अब जो एक और बात है वो ये है कि रिएक्टिविटी. इसमें रिएक्टिव कौन होगा ज्यादा? अगर हम बात करेंगे, यहां तक लिखा आपने? लेट्स दिस एरिया. नाउ अब मैं रिएक्टिविटी की बात करूंगा. रिएक्टिविटी क्योंकि वी हैव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. ठीक है. सी, अगर इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, वो पहला स्टेप है, स्लोवेस्ट स्टेप है. तो उसमें क्या बन रहा है? उसमें बन रहा है कार्बोकैटायन. अब हम देखेंगे जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसी की रेट भी क्या होगी? ज्यादा. समझा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मीन्स दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर. सो अगर इसकी जो डेफिशिएंसी वो कम हो जाएगी, दैट मीन्स ये स्टेबल बन जाएगा. ये क्या बन जाएगा? स्टेबल. दिस कार्बन इज हैविंग हाउ मेनी CH3s? 3. CH3, it contains 9 hydrogens. Hydrogen usually will donate electrons towards this carbon. समझ आ रहा है? So that means 9 hydrogens will donate electron to this single carbon. It will be stabilized. It will be stabilized. Now we will take secondary. This one, CH3 hydrogen. This is secondary carbocation. How many hydrogens we have there? 3 plus 3, 1, 7. So we have 7 hydrogens. Only 7 hydrogens will donate electrons towards positively charged carbon. Now the primary, CH3 hydrogen positive charge. How many we have there? Hydrogens? 5. Which one will donate more electrons? कौन सा ज्यादा डोनेट करेगा? टर्शियरी में ज्यादा डोनेशन होगी. तो स्टेबल कौन ज्यादा बनेगा? टर्शियरी. और रिएक्टिव भी कौन होगा ज्यादा? टर्शियरी. सो दैट इज व्हाई टर्शियरीज आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, followed by 1 degree. So the order of reactivity of alkyl halides via SN1 mechanism is like this. So tertiary are highly reactive, followed by secondary, and ultimately 1 degree alkyl halides. 1 degree alkyl halides. समझ आ रहा है कुछ? So this was all about SN1, that is nucleophilic unimolecular substitution.